हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिनोमियल्स पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 बुक की एक्सरसाइज 2.1। इसके हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में जाने से पहले हम एक्सप्रेशंस के बारे में कुछ और डिस्कशन करते हैं। सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x, जहाँ पे x is a variable and 2 is a constant. Now this variable x can be represented by any letter, say y, z, t, etc. Now suppose अगर हमें ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अगर पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि ये कांस्टेंट क्या है, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Now this constant can also be represented as letters a, b, c, etc. So this expression can be represented as ax, where a is a constant and x is a variable. यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि a is representing a constant जिसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. Whereas the value of x can change and accordingly the value of this expression will change. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका एक साइड है से 4 सेंटीमीटर. नाउ अगर हमें इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. अगर इसकी साइड हो जाती है 10 सेंटीमीटर तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. सिमिलरली अगर इसकी साइड x है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4x. So we see that the perimeter changes as the length of the side changes, where this 4 is remaining constant. Similarly here also a will remain constant and the value of a will remain constant and x will change its value. So in this way we can represent an expression जहां पे हमें constant की value पता नहीं है. Now let us see how we represent different types of polynomial in generalized form. Let us take example of a linear polynomial 2x plus 3. Here x is the variable and 2 and 3 are constant. So this polynomial can be represented in a generalized form as ax plus b, where a and b are constants and a is not equal to 0. Similarly, a quadratic polynomial can be represented as ax square plus bx plus c, where a, b and c are constants and a is not equal to 0. And a cubic polynomial will be represented as ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c and d are constants and a is not equal to 0. Now you see in all the cases a is not equal to 0. Why is it so? Because if you replace a with 0 in the respective polynomials, then they will no longer be called a linear polynomial or a quadratic polynomial or a cubic polynomial, because the term which classifies them as a linear, quadratic or cubic polynomial will become 0. So a cannot be 0 in all the three cases, whereas b, c and d can take the values as 0. तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ. दिस इज एक्सरसाइज 2.1 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9 बुक. So first question is, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State the reason for your answer. तो हमें दो चीज देखनी है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, और वो वेरिएबल कितने हैं उस पॉलिनोमियल में, एक है या एक से ज्यादा है. तो पहला क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल है या नहीं. वी सी दैट वेरिएबल का पावर होल नंबर है, सो इट्स अ पॉलिनोमियल, और देयर इज ओनली वन वेरिएबल x, so this is a polynomial in one variable. Here also we see that the power of the variable is a whole number, so it is a polynomial, and we have only one variable as y, so this is also a polynomial in one variable. थर्ड पे आते हैं. लुक एट द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म को देखते हैं यहाँ पे, दैट इज 3t. हियर t का पावर क्या है? 3 and t का पावर is 1/2, which is not a whole number, so this is not a polynomial itself. Here in the fourth question, look at the second term, 2 by y. 2 by y can be written as 2 multiplied by y to the power minus 1. तो here also जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर नहीं है, सो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है. एंड थर्ड में
ये पॉलिनोमियल तो है बिकॉज सारे पावर्स जो है वो होल नंबर्स हैं, बट वी हैव मोर देन वन वेरिएबल x, y and t. So this is also not a polynomial in one variable. So we have only 1 and 2 as polynomial in one variable. Now second question, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, तो हमें देखना है एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई है। तो हियर एक्स स्क्वायर हैज बीन मल्टीप्लाइड विथ 1, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, π/2 है। फोर्थ वाले में एक्स स्क्वायर तो है नहीं, बट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +0 इंटू एक्स स्क्वायर, बिकॉज इसका वैल्यू तो 0 ही हो गया। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। सो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो फर्स्ट केस में हमें एक बाइनोमियल लिखना है, मतलब दो टर्म होने चाहिए और उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, हमको सिर्फ इंश्योर करना है कि उसमें दो टर्म होने हैं और उनकी डिग्री 35 होनी है। सो वी कैन राइट 4x टू द पावर 35 माइनस 3। और एक एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो हम ले सकते हैं -3y टू द पावर 35 प्लस 4। So these are the examples of binomial of degree 35. Now monomial of degree 100. एक ही टर्म चाहिए और डिग्री 100 चाहिए। We can write 3x to the power 100. Another example -4t raised to the power 100. नेक्स्ट क्वेश्चन में है write the degree of each of the following polynomials. तो हमें क्या देखना है, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर देखना है क्या है। तो हियर जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये 2 हो गई इसकी डिग्री। थर्ड क्वेश्चन में जो वेरिएबल है t, उसका पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। 3 में वेरिएबल नहीं है, बट इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू एक्स वाई जेड कुछ भी रेज टू द पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो हियर इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसकी डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अगेन इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री भी 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब आते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पे। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे चाहिए एट x इक्वल टू 1 पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x को 1 से रिप्लेस कर देना पड़ेगा। p1 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 3 प्लस 7, that is equal to 9. So the value of this polynomial at x equal to 1 is 9. हमने इस तरह के सवाल लास्ट क्लासेस में भी किए हैं, जैसे हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस होते थे 2x प्लस 3 की आप वैल्यू निकालो एट x इक्वल टू 1 पे, तो हम क्या करते थे, x को 1 से रिप्लेस कर देते थे, 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो सेम चीज यहाँ भी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो वी हैव बीन गिवन दिस पॉलिनोमियल, अभी इसकी वैल्यू हमें निकालना है एट y इक्वल टू 2 पे, तो Q2 सभी जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, y की जगह पे 2 रख देना पड़ेगा। तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11, दैट मीन्स दिस विल बी 24 माइनस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11, दैट विल 16 प्लस रूट 11। सो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट y इक्वल टू 2 पे क्या हो गई, 16 प्लस रूट 11। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें चाहिए एट t इक्वल टू a पे। सो मुझे क्या करना है, t को a से रिप्लेस करना है। सो पी ए विल बी इक्वल टू 4 a रेज टू द पावर 4 माइनस 5 a रेज टू द पावर 3
माइनस a रेज टू द पावर 2 एंड प्लस 6। सो इस तरह से अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है तो हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस कंसिडर अ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x माइनस 1। अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो मुझे क्या मिलता है? p1 इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल qy इक्वल टू y माइनस 2। अगर हम y को 2 से रिप्लेस करते हैं तो मुझे क्या मिलता है? q2 इक्वल टू 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक पॉलिनोमियल है। इस केस में x को अगर हम 1 से रिप्लेस करते हैं तो ये 0 हो जाता है और इस केस में y को 2 से रिप्लेस करते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो इस केस में 1 और इस केस में 2 विल बी कॉल्ड एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल्स का जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो पॉलिनोमियल है उसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। सपोज पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर हमें इस पॉलिनोमियल का जीरो चाहिए, दैट मीन्स x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको कि यहां पे रखने से ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 3/2। सो माइनस 3/2 विल बी कॉल्ड एज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल को हम ले से ax प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल है जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, तो इसका जीरो क्या हो जाएगा? x विल बी इक्वल टू माइनस b बाई ए। सो माइनस b बाई ए is the zero of a linear polynomial where b and a are constants. Suppose we have a linear polynomial, say 4x plus 8. So what will be the zero of this polynomial? Minus b by a. b की जगह क्या है? 8 है और a की जगह क्या है? 4 है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? माइनस 8 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 2, राइट? इसको हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू क्या हो गया? -1/2। सो -1/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2x प्लस 1। Now check whether -2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2. So say px is equal to x plus 2. So let us take -2 first. So p minus 2 is equal to -2 plus 2, that is equal to 0, and p2 is equal to 2 plus 2 that is equal to 4. So सेकेंड केस में हम देख रहे हैं द पॉलिनोमियल जीरो नहीं होता है अगर हम x को 2 से रिप्लेस करें, बट जब हम x को -2 से रिप्लेस करते हैं तो पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाता है। सो वी कैन से दैट -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2, whereas 2 is not the zero of the polynomial x plus 2. कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल्स मैंने एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी के बुक से लिया है। सो हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू -1। सो लेट अस से px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सो p minus 1 will be equal to 5 into -1 minus 4 into -1 square plus 3. This will be equal to -5 minus 4 plus 3. This is equal to -6. ये हमारा आंसर हो गया। Now second example, find p0 for the polynomial this. So we have pt is equal to 2 plus t plus 2t square minus
t cube. So what will be the value of p0? P0 will be 2 plus 0 plus 2 into 0 square minus 0 cube. This is equal to 2. So इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट p0 क्या हो गई? 2 हो गई. Moving on, find whether x is equal to minus 3 is the zero of the polynomial px is equal to 3x plus 1. So हम क्या करेंगे यहाँ पे x की जगह पे -1/3 रख के देखेंगे कि इसकी वैल्यू 0 हो रही है या नहीं. अगर 0 हो रही है तो -1/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. सो वी हैव px is equal to 3x plus 1. So p minus 1 upon 3 will be equal to 3 multiplied by minus 1 upon 3 plus 1. This is equal to minus 1 plus 1, that is equal to 0. So we see that this polynomial becomes 0 when we replace x with minus 1 by 3. So minus 1 by 3 इस polynomial का 0 हुआ. Now find the 0 of the polynomial px is equal to c plus d. 0 निकालना है हमें. तो 0 निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? px इक्वल टू 0 चाहिए. px इक्वल टू 0 कब होगा? When cx plus d is equal to 0. So x की क्या वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगी this will be equal to minus d upon c. So this is the value for which this polynomial becomes 0. So minus d by c is 0 of the polynomial. अभी let us see whether a polynomial can have more than one zeros. Suppose we have a polynomial x square minus 2x. मुझे चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 पर. सो वी हैव px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x. सो p2 इक्वल टू क्या हो गया? p2 इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, that is equal to 4 minus 4, that is 0. So we see that at x equal to 2, this polynomial becomes 0. So 2 becomes 0 of this polynomial. Now let us find out p0. p0 equal to 0 का square minus 2 into 0, that is 0. So we see that both 2 and 0 ये दोनों ही इस polynomial के zeros हैं. So we can say that a polynomial can have more than one zeros, and 0 can also be 0 of a polynomial. Now tell me what will be the 0 of a constant polynomial. Say we have a constant polynomial as 5. तो 5 का 0 क्या होगा? 5 का 0, there will not be any 0 for this polynomial, because अगर हम यहाँ पे 5 को हम ऐसे अगर लिखें 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो आप x की कुछ भी वैल्यू ले लो, x की कुछ भी वैल्यू ले लो, इसकी वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी. इट कैन नेवर बिकम 0. सो अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो 0. व्हाट अबाउट 0? 0 is also a constant polynomial and we call it as a zero polynomial. So कोई भी रियल नंबर है वो इसका 0 होगा. Every real number is a 0 of zero polynomial. So this was about 0 of a polynomial. एनसीईआरटी की बुक में जो 2.2 एक्सरसाइज है उससे हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. आगे जो इसमें प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें. अगर किसी प्रॉब्लम में कुछ दिक्कत आ रही है या अभी तक जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल में अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको डालें. उस पर हम और डिस्कशन करके उन डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम. सपोज हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स है. One is 3x square plus x minus 1 and the other is x plus 1. Let us denote this polynomial with px and this polynomial with gx. Now we have to find out that if we divide this px by gx, so
what is the remainder, whether there is whether there is a remainder at all, or if there is any remainder, what is that. ये जानने के लिए हमारे पास क्या तरीका है. सो हम px को gs से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है. बट दैट्स ए लॉन्ग मेथड, नो. सो हमारे पास कोई ऐसा तरीका है क्या जिससे कि हम अगर px को gs से डिवाइड करें तो मुझे इमीडिएटली पता चले कि रिमाइंडर है या नहीं, और अगर है तो रिमाइंडर क्या है. तो रिमाइंडर थ्योरम में हम इसी के बारे में बात करेंगे. तो उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम देखते हैं कि डिवीजन के डिफरेंट कंपोनेंट्स में क्या रिलेशन होता है. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में पिछले क्लासेस में, बट एक बार जस्ट उसको रिवाइज करते हैं. सपोज हम 21 को 4 से डिवाइड करते हैं. सो इफ वी डिवाइड 21 by 4, we get 5 as quotient and 1 as remainder. So 21 can be written as 4 into 5 plus 1. So this is our dividend, this is our divisor, this is our quotient and this is remainder. So इनके बीच में रिलेशन क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. और अगर रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं होता है, अगर इफ दिस इज जीरो, सपोज इफ वी वांट टू डिवाइड 20 with 4, so we get straight away quotient as 5 and we don't get any remainder. Remainder is 0. So here 20 is equal to 4 multiplied by 5, and we say that 4 and 5 are factors of 20 and 20 is a multiple of 4 and 5. यहाँ तक क्लियर है? Now let us come to the division of px by gx. इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं यहाँ पे. सो x प्लस 1 हमने किया हुआ है ये डिवीजन, बट थोड़ा रिवीजन के लिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ. सो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. सो विल टेक द फर्स्ट टर्म ऑफ आवर डिवाइजर एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ आवर डिविडेंड. सो x को x से डिवाइड करना है 3x स्क्वायर को. सो x should be multiplied with 3x to get 3x square. So 3x will be our first term of the quotient. Now 3x को अब ये डिवाइजर के दोनों टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले मुझे क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर एंड प्लस 3x. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, sign change, minus minus, so this will cancel out and we have here minus 2x minus 1. Now minus 2x minus 1 अब हमारा नया डिविडेंड हो जाता है. अभी फिर इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म एंड डिविडेंड का फर्स्ट टर्म. सो x should be multiplied by minus 2 to get minus 2x. So our second term of quotient will be minus 2. So now multiply the entire divisor with minus 2. So we get here minus 2x minus 2. We change the sign. This is plus and this is plus. So this cancels out and we have 1 as remainder. So we can write here 3x square plus x minus 1 is equal to x plus 1 multiplied by 3x minus 2 plus 1. The same relation. Now x plus 1 को हमने gx से डिनोट किया है एंड 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को हमने px से डिनोट किया है. If we denote 3x minus 2, that is our quotient, by qx and remainder by rx, then we can write here px is equal to gx multiplied by qx plus rx based on the relationship that we have seen just now. ऐसा लिख सकते हैं. So here we see that we stop the process of division when we get our remainder, an expression
whose degree is less than the degree of the divisor, or if the remainder is 0. So Rx can be 0, और Rx का जो डिग्री है वो जब हमारे डिवाइजर का डिग्री से कम हो जाता है, देन वी स्टॉप द प्रोसेस ऑफ डिवीजन. नाउ अभी इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि वी हैव पी एक्स इक्वल टू 3x² plus x minus 1. Now let us see what is the value of this polynomial at p is equal to minus 1. P equal to minus 1 will be 3 multiplied by minus 1 का whole square plus minus 1 minus 1. This will be 3 minus 1 minus 1. This will be equal to 3 minus 2, that is equal to 1, which is same as the remainder that we have got by dividing px by gx using the long division method. Now let us take our divisor gx is equal to x plus 1. Let us find out the zero of this polynomial. तो इस polynomial का zero क्या हो गया? इस polynomial का zero निकालने के लिए हम x plus 1 को 0 से equate करेंगे. x plus 1 is equal to 0, that means x is equal to minus 1. So this minus 1 is same as this. So हम देख रहे हैं कि जो डिवाइजर में जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका जीरो को हम px में हम रिप्लेस कर दें तो हमें सेम वैल्यू मिल रहा है जो कि हमें रिमाइंडर में मिल रहा है. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. से वी हैव टू डिवाइड 3x to the power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1. So we will take the first term 3x4. So if we multiply x with 3x cube, we get 3x4. So 3x cube is the first term of the quotient. 3x cube को x minus 1 से multiply करेंगे तो हमें मिलेगा 3x4 minus 3x cube. We subtract minus plus, so this cancels out, and we have minus x cube minus 3x minus 1. अब ये हमारा नया डिविडेंड है. अभी इसके फर्स्ट टर्म और इसके फर्स्ट टर्म को लेते हैं. तो x को अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x क्यूब मिलेगा. सो एक्स स्क्वायर हमारा सेकेंड टर्म हो जाता है क्वोशिएंट का. अब एक्स स्क्वायर को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस एक्स स्क्वायर. So now this becomes plus, this becomes minus, and this cancels out. Now we have minus x square minus 3x minus 1. This is our new dividend. So if we multiply x with minus x, we get minus x square. So minus x is our third term. So now we multiply x minus 1 with minus x. So we get minus x square plus x. Subtract, this is plus, this is minus, this cancels out. We have minus 4x minus 1. Now again, the fourth term will be minus 4. So multiply x minus 1 with minus 4, we get minus 4x plus 4. So this will become plus, this is minus. So this cancels out and we have minus 5. So this is our remainder, and let us denote it by Rx. Now let us take the divisor. Let us denote this by Gx, and let us denote it by Px, and let us denote it by Qx. So divisor को लेते हैं. Divisor is Gx equal to x minus 1. Now what will be the zero of this polynomial? It will be Gx is equal to 0. That means x minus 1 is equal to 0. That means x is equal to 1.
Now replace the value of x in px with this one. That means if we write px, we have px is equal to 3x4 minus 4x cube minus 3x minus 1. So p1 will be equal to 3 into 1 raised to the power 4 minus 4 into 1 raised to the power 3 minus 3 into 1 minus 1. So we have 3 minus 4 minus 3 minus 1. So we are getting minus 5, which is equal to Rx. It is same as the remainder that we have obtained by dividing Px with Gx. तो सब जगह हम देख रहे हैं कि अगर जो हमारा डिवाइजर है, जो भी पॉलिनोमियल हमारा डिवाइजर में है, उसके जीरो को अगर हम डिविडेंड में रिप्लेस करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है. Keep in mind that here in all cases we are taking our divisor as a linear polynomial. So let us see how we write remainder theorem that we have discussed just now. So remainder theorem क्या कहता है? If a polynomial px is divided by a linear polynomial x minus a, where a is a real number, तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? द रिमाइंडर ऑफ दैट डिवीजन इज सिंपली द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a और pa, which also happens to be the zero of this polynomial x minus a. So this is a statement of remainder theorem. इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं. Suppose we have a problem. Find the remainder when this polynomial is divided by x minus 1. हम क्या करेंगे? Let px is equal to x raised to the power 4 plus 3 minus 2x square plus x plus 1. Now what we need to do is we have to check the zero of the polynomial x minus 1 by which it is being divided. So इस polynomial का zero क्या है? Zero of x minus 1 क्या है? This is equal to 1. So we'll find the value of p1. p1 is equal to, this is 1 raised to the power 4 plus 1 raised to the power 3 minus 2 into 1 raised to the power 2 plus 1 plus 1. That is equal to 1 plus 1, 2, 2. So its value is 2. So the remainder is 2. So you see how easy it is to find the remainder when a polynomial is divided by a linear polynomial without actually dividing it. एक और एग्जांपल लेते हैं. So we have to check whether 2t plus 1 is a multiple of this polynomial or not. तो 2t plus 1 को इसका मल्टीपल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2t plus 1 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर 0 आता है, इसका मतलब ये इसका मल्टीपल है. अभी हमने समझा था अगर 4 से जैसे अगर हम 20 को डिवाइड करें और हमारा मल्टीपल अगर 0 आता है और हमारा रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम क्या कहते हैं? 4 20 का मल्टीपल है. सो हम देखेंगे कि अगर हम 2t plus 1 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है. सो वील अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम हियर. So first we will find out the zero of this polynomial 2t plus 1. So what will be the zero of this polynomial 2t plus 1? So we will equate 2t plus 1 with 0. So t की वैल्यू क्या आएगी? t की वैल्यू आएगी -1/2. So हम इस -1/2 को इस पॉलिनोमियल में t के जगह पे रिप्लेस करेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू आता है. वो वैल्यू ही उसका रिमाइंडर होगा. So let us find out the value of qt at t is equal to -1/2. So q minus 1/2 is equal to 4 into -1/2 cube plus 4 minus 1/2 square minus -1/2 minus 1. So this is equal to minus 4 into 1/8. This is plus 4 into 1/4. This is plus 1/2 minus 1. This is equal to minus 1/2 plus 1 plus 1/2
and minus 1. So this is equal to 0. This means that when we divide this polynomial with 2t minus 1, my remainder will be 0. So we can say that 2t plus 1 is a multiple of qt. So these are some practical applications of remainder theorem. It will be further applied in factorization of polynomials and also factor theorem. So I hope remainder theorem is clear to all of you. You can solve the exercise 2.3 of NCERT book on your own. If you face any problem in solving those questions, you can write in comment box. We'll discuss them once again and try to solve them together. Thank you for watching. I'll see you in my next video, which will be on factorization of polynomials and factor theorem. Thank you.